Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. In my previous video, I have done chapter Animals, Birds and Dr. Dolittle from Unit 2 Wit and Humor from our English NCERT book Purvi of class 7th. Today we will continue further and we'll do exercises, that is the back exercise of this chapter. Let us discuss. Complete the following sentence by selecting a suitable reason. This is given in the middle of the chapter, so I have taken over here. The cat's food man suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle earns less fee by treating human patients, enjoys the company of animal as they speak less, dislikes spending time with human patients, knows more about animals than the local veterinarians. So कैट फूडमैन जो कैट फूडमैन था उसने डॉक्टर डोलिटल को ये सजेस्ट क्यों किया कि आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि वो क्या बिलीव करता था, क्या वो ये बिलीव करता था कि उनको वो पैसे कम कमा रहे हैं ह्यूमन पेशेंट देखने से, या वो एनिमल्स की कंपनी इंजॉय करते हैं क्योंकि एनिमल्स कम बोलते हैं, या वो डिसलाइक करते हैं मतलब वो ह्यूमंस के साथ टाइम स्पेंड करने को डिसलाइक करते हैं, या फिर दे नो मोर अबाउट एनिमल्स, या फिर उनको एनिमल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है बाकी वेट्स के मुकाबले में. So the correct answer is knows more about animals than the local veterinarians. Fill in the blanks by choosing a suitable option given in the brackets. Dr. Dolittle reacts to Polynesia information about animal languages with both excitement and certainty or curiosity. So the answer is curiosity. He rushes to dash the bird words she provides and is interested in learning more. Write or memorize? So the answer is write. Okay. So do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? Yes. Dr. Dolittle would be famous as animal doctor. Why? Because he was able to understand the problem of animals and he was able to give proper treatment to them. Now the next question, let us discuss what became a common sight in Puddleby after Dr. Dolittle started treating animals. So question is कि एक कॉमन पडलबाई में क्या एक कॉमन चीज़ हो गई थी जो सब में नज़र आ रही थी हमें जब डॉक्टर डोलिटल ने एनिमल्स को ट्रीट करना शुरू किया. ह्यूमन्स टॉकिंग टू फार्म एनिमल, क्या ऐसा हुआ था कि वहाँ जो ह्यूमन बींग्स थे वो फार्म एनिमल्स से बात करने लग गए थे, या फार्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस, क्या उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहनना शुरू कर दिए थे. फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड लैंग्वेज, क्या फार्म एनिमल बर्ड की लैंग्वेज समझ रहे थे, या फिर बर्ड्स राइडिंग अटॉप फार्म एनिमल, क्या बर्ड्स जो है वो फार्म एनिमल्स के ऊपर राइड कर रहे थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि फार्म एनिमल्स दे वर वियरिंग ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स. What challenges do you think Dr. Dolittle might face if more and more animals come to him for help? अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर डोलिटल पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनिमल्स आते हैं हेल्प के लिए तो क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम उनके पास उनको फेस करनी पड़ती है. सो द आंसर इज डॉक्टर डोलिटल माइट फेस सम चैलेंजेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प, लाइक to understand different language of different animals, to understand their problem and to create solution for their problem. ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लैंग्वेजेस को समझना पड़ता है, एनिमल्स की उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है और फिर एक सोल्यूशन भी उनकी प्रॉब्लम को निकाल कर देना पड़ता है. हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट, इन चैलेंजेस को कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं. Dr. Dolittle might overcome the challenges by understanding the language of animals and to treat their problem with much more patience. तो डॉक्टर डोलिटल जो है वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं
बाय अंडरस्टैंडिंग एनिमल की लैंग्वेज को समझकर और उनकी प्रॉब्लम को जो है पेशेंस के साथ ट्रीट कर। Arrange the following events in correct order according to the story. Two have been done for you. Share your answers with your classmate and the teacher. So now what you have to do, you have to arrange these events according to the story in correct order. दो यहाँ पर already करे हुए हैं. First क्या है? A man with a stomach ache visit Dr. Dolittle and suggests he should treat animals instead of people. तो एक first चीज़ तो यही हो गई कि animal कि एक man आया जिसको stomach ache था, ठीक है, और कैट फूड मैन था वो, और उसने डॉक्टर डोलिटल को सजेस्ट किया कि उनको एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पीपल। सेकंड, द पैरेट पोलिनेशिया इनकरेजेस डॉक्टर डोलिटल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवीलिंग दैट एनिमल्स कैन टॉक। सो जो पैरेट है यहाँ पर, पैरेट पोलिनेशिया ने इनकरेज किया डॉक्टर डोलिटल को कि वो एक एनिमल डॉक्टर बने, जिससे कि वो, क्योंकि वो एनिमल्स से बात कर सकते हैं, रिवीलिंग दैट एनिमल्स जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो है वो बोल सकते हैं। थर्ड, अब थर्ड क्या होगा यहाँ पे? थर्ड ही होगा, पोलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डोलिटल एनिमल लैंग्वेजेस एंड ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स। तो पोलिनेशिया जो है वो डॉक्टर डोलिटल को एनिमल लैंग्वेजेस जो है वो सिखा रही थी, और डॉक्टर डोलिटल ने भी उस लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया था और कम्युनिकेट करना शुरू करा था एनिमल्स के साथ। Number 4, Dr. Dolittle decides to stop being a doctor for people and becomes a doctor for animals. तो डॉक्टर डोलिटल जो है वो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो पीपल के डॉक्टर जो है वो नहीं थे, अब वो किसके बन गए थे? डॉक्टर एनिमल्स के बन गए थे। Number 5, a plow horse with vision problem visits Dr. Dolittle who prescribes green spectacles to improve the horse eyesight. तो एक हॉर्स, प्लो हॉर्स जो है वो विजन की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर डोलिटल के पास आया, जिसको बोला गया कि जिसने बोला कि मुझे ग्रीन स्पेक्टिकल्स पहननी है ताकि उसकी आई साइट जो है वो जो है इम्प्रूव हो सके। Word spreads and people start bringing their sick pets and फार्म एनिमल्स टू डॉक्टर डोलिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो धीरे धीरे उनका नाम इतना ज़्यादा बढ़ता गया डॉक्टर डोलिटल का कि सारे सिक पेट्स और फार्म एनिमल्स को डॉक्टर डोलिटल के पास ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। देन नंबर 7, एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डोलिटल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। तो एनिमल्स जो दूर के एनिमल्स, पास के एनिमल्स, सारे एनिमल्स डॉक्टर डोलिटल के पास आते थे हेल्प के लिए, और उनके गार्डन में आके जो उनका जो गार्डन था वो सारे एनिमल्स के साथ भर जाता। डॉक्टर डोलिटल इंस्टॉल्स स्पेशल डोर फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर हिज हाउस फॉर ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर डोलिटल ने अपने घर में स्पेशल डोर्स बनाए थे अलग अलग एनिमल्स की ट्रीटमेंट के लिए, ताकि एनिमल्स अलग अलग जगह से एंटर कर सकें। Dr. Dolittle's ability to communicate with animals help him diagnose and treat their illnesses effectively. तो डॉक्टर डोलिटल जो है उनकी एबिलिटी क्या थी? वो एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, बात कर सकते थे, उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उनकी इलनेस को ट्रीटमेंट कर सकते थे। Number 10, Dr. Dolittle gains fame among animals worldwide and they come to him from various places for help. तो डॉक्टर डोलिटल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड, और सारी जगह के एनिमल्स जो वेरियस प्लेसेस से उन एनिमल्स से वो सारे उनके पास आते थे हेल्प के लिए। So in this way you have to complete this, arrange these according to the story. Let's come to the next question. Let us think and reflect. Read the extracts given below and answer the questions that follow. ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है हमें और जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर करना है। इफ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस का ओ फी। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। माय, यू डोंट से सो, said the doctor. You never talked that way to me before. So इस एक्सट्रैक्ट में क्या बता रहे हैं कि जो पोलिनेशिया है वो
बर्ड लैंग्वेज जो है वो डॉक्टर डोलिटल को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो कहती है कि अगर मैं बोलूँगी पॉली वांट्स अ क्रैकर, अगर पॉली को क्रैकर चाहिए तो आपको मेरी बात क्लियरली समझ आएगी, क्योंकि एक ये नॉर्मल सा सेंटेंस है। बट अगर मैं इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलूँगी का ओ ई फी तो आपको ये बात जो है ये समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है इज़ द पॉरेज हॉट, और ये एक बर्ड लैंग्वेज में है। ठीक है, तो डॉक्टर डोलिटल कहते हैं कि इस तरह से तुमने पहले कभी मेरे से बात नहीं करी, तुमने मुझे नहीं बताई ये बर्ड लैंग्वेज। What would have been the good? Said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left. You won't have understood me if I had. तो फिर उसके बाद पॉलिनेशिया ने क्या बोला कि अगर मैं बात करती भी तो भी आपको ये बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है। Complete the sentence by choosing the correct option. In the line good gracious, cried the doctor, the expression good gracious can be replaced by. अच्छा, गुड ग्रेशियस, ग्रेशियस यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव तरीके का जो है वो पॉजिटिव तरीके में एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब पॉजिटिव वे में ब्रेवो भी एक पॉजिटिव है, अलास भी, हुर्रे भी। गोश के गोश जो है इसको रिप्लेस कर सकता है, जो कि एक नेगेटिव। Why had Polynesia never used bird language with डॉक्टर earlier? Polynesia ने पहले कभी bird language क्यों नहीं यूज़ करी डॉक्टर के साथ? इसलिए नहीं करी क्योंकि डॉक्टर was not aware of the bird language और उनको वो समझ नहीं आती। Because he thought that doctor can never understand bird language. ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? Polynesia never used bird language with the doctor earlier because he thought that doctor can never understand the bird language. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हमें देखना है ये ट्रू है या फॉल्स। पॉलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम व्हाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डोलिटल। पॉलिनेशिया कुछ मंच कर रही थी, खा रही थी, एक फूड आइटम खा रही थी जब वो डॉक्टर डोलिटल से बात कर रही थी। तो दिस इज ट्रू। हाउ डिड डॉक्टर डोलिटल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है वो कैसा फील कर रहे थे? एंशियस, सरप्राइज्ड, एंग्री या फिर रिलैक्स्ड? द आंसर इज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो यहाँ आप इसको इस तरह से टिक करेंगे, सरप्राइज्ड। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन, दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज while I am plowing the field. Certainly, said the doctor, green ones you shall have. You know, the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be really good animal doctor than it does to be good people's doctor. तो यहाँ पर जो हॉर्स आया था उसने अपनी आईज़ के लिए डॉक्टर को बोला था, विजन के लिए दिखाने के लिए आया था। तो उसने कहा था कि मुझे जैसा आपने ग्रीन पेड़ लगाया है वैसा ही चाहिए, ताकि मैं जब फील्ड को प्लो करने के लिए जाऊँ उस टाइम पे मैं अपनी आईज़ को सन से बचा सकूँ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तुम्हें ग्रीन ही अगर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन ही पहनना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्लो हॉर्स ने बोला कि प्रॉब्लम यही है कि सब अपने आप को क्लेवर समझते हैं, बट एक्चुअल में क्योंकि सबको ये लगता है, ट्रबल ये है कि सबको ये फील होता है कि एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते, तो उनके डॉक्टर बन जाओ और उनको किसी भी तरह की मेडिसिन देते रहो, कुछ भी देते रहो, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते और वो कंप्लेन भी नहीं करते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है कि कोई जो है वो एनिमल का डॉक्टर बने इंस्टेड ऑफ पीपल डॉक्टर। ठीक है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी। अब यहाँ पर आपको डिगिंग, डिगिंग किससे रिलेटेड है? फ्लावर बेड से। और फील्ड से रिलेटेड यहाँ कौन सा वर्ड दिया हुआ है? प्लोइंग। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डोलिटल्स एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज। इस एक्सट्रैक्ट में डॉक्टर डोलिटल जो है उनका एटीट्यूड कैसा है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ हॉर्स। ठीक है, कि क्या हॉर्स की प्रॉब्लम है उसको समझ रहे, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग आएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर्स टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज। तो इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे क्या कंक्लूड करते हैं हम कि डॉक्टर्स जो हैं वो टेक एनिमल्स
फॉर ग्रांटेड, बिकॉज एनिमल्स को वो फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं डॉक्टर्स? बिकॉज दे कैन नॉट कंप्लेन, दे कैन नॉट टॉक, ओके, दे अज्यूम दैट एनिमल्स कांट एक्सप्रेस और कंप्लेन, ठीक है, ना तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को, ना ही वो कंप्लेन कर सकते हैं, इसलिए उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट? ये जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्या आप इससे एग्री करते हो? वाई और वाई नॉट? Yes, I agree as animals can also express their thoughts and emotion just like human beings. ठीक है, हम एग्री क्यों करते हैं? क्योंकि एनिमल्स भी जो है ना अपने थॉट और इमोशन को किसी ना किसी वे में हमें बता देते हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो अपना इमोशन शो कर देते हैं, वो बहुत सैड हैं, अपसेट है किसी बात से, तो वो इमोशंस और थॉट को ह्यूमन बींग्स की तरह ही बता सकते हैं। Answer the following question. How can we say that Polynesia was a good trainer of animal language? ठीक है, पोलिनेशिया हम कैसे बता सकते हैं कि पोलिनेशिया जो है वो उसने एनिमल लैंग्वेज की अच्छी ट्रेनिंग दी है डॉक्टर Polynesia was a good trainer of animal language because she helped Dr. Dolittle to understand animal behavior and also taught him how animals speak. ठीक है, कि पोलिनेशिया जो है वो गुड ट्रेनर कैसे है एनिमल लैंग्वेज की, क्योंकि उसने डॉक्टर डोलिटल को हेल्प करी है एनिमल बिहेवियर को समझने में, और उन एनिमल्स का जो बिहेवियर है, और उन ये भी बताया कि एनिमल्स क्या बोलते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ उनकी लैंग्वेज समझने में हेल्प करी। Explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. डॉक्टर डोलिटल ने हर एनिमल को इक्वल बराबर की और इंडिविजुअल अटेंशन दी है, अकेले में सब डॉक्टर ने सब हर एनिमल को इंडिविजुअल अटेंशन भी दी है, ठीक है, ये कैसे पता लगता है? Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal by listening to their problem and providing them with right treatment. तो इंडिविजुअल अटेंशन कैसे दी है? एक तो उनकी प्रॉब्लम को समझा है, उनकी प्रॉब्लम को सुना है, सबसे पहले सुना है और फिर उनको राइट ट्रीटमेंट दिया है, और ही ऑल्सो मेड स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर हिज हाउस कंफर्टेबली। तो उनके हाउस में अलग अलग एनिमल्स के लिए डोर्स बने हुए थे ताकि वो कंफर्टेबली जो है वहाँ पर एंटर कर सके। How does Dr. Dolittle's readiness to follow the parrot advice highlight the importance of listening to different viewpoints? तो डॉक्टर डोलिटल जो है उन्होंने पैरेट की एडवाइस जो फॉलो करी, ठीक है, उससे क्या पता लगता है, ये कैसे पता लगता है कि ये मतलब लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है? Dr. Dolittle listened to parrot's advice carefully because he thought it was a good idea which the parrot gave him. It shows that different viewpoints can lead to different great opportunity. ठीक है, तो डॉक्टर डोलिटल ने पैरेट की एडवाइस को इसलिए सुना क्योंकि उनको लगा कि जो एडवाइस या आइडिया जो है वो कोई भी दे सकता है, वेदर इट इज़ अ एनिमल और पैरेट अकॉर्डिंग टू द लेसन, ठीक है, तो एडवाइस, अच्छी एडवाइस कोई भी दे सकता है, तो उनको एडवाइस सुन लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसकी उनको लगा कि ये एडवाइस जो ये दे रही है, ये आइडिया दे रही है वो गुड है, अच्छा है, इसलिए उन्होंने पैरेट की बात को सुना, और इससे ये पता लगता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कैन लीड टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब हर किसी का व्यू पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हर बात को सोचने का अलग अलग नज़रिया होता है, मैं कुछ अलग तरीके से सोचूंगी, आप कुछ अलग तरीके से सोचोगे, थर्ड पर्सन है वो कुछ अलग तरीके से सोचेगा, तो सबका डिफरेंट व्यू पॉइंट जो होता है वो हमें अगर हम सबकी बात सुने तो अलग अलग व्यू पॉइंट सुनने के बाद हमारे पास चांस होता है आगे बढ़ने का और ग्रेट अपॉर्चुनिटी अचीव करने का। Question number 4. Which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals? Explain with evidence from the text. डॉक्टर डोलिटल की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो जिसने उन्हें फेमस करा एनिमल्स में? तो वही वही थी क्वालिटी कि वो सबकी सुनते थे, उनकी बातें सुनकर अंडरस्टैंड करते थे, उनको सही तरीके का ट्रीटमेंट देते थे, इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते कि बाहर से दूर फार अवे एनिमल्स भी जो है वो उनके पास आते थे। But Dr. Dolittle became famous among animals because he understand the problem of animals. वो animals की problem को समझते थे and gave them the right treatment with care. और उनको right treatment दिया जाता था जो animals थे care के साथ. Animals from far away places came to see him.
कि एनिमल्स जो फार अवे प्लेसेस के, मतलब दूर के जो एनिमल्स थे, वो उनको देखने के लिए केम टू सी, उनके उनके पास उनको दिखाने के लिए स्पेशली आते थे. What changes do you think would happen in the world if people suddenly gained the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals? तो क्या चेंजेस होंगे अगर वर्ल्ड में, अगर डॉक्टर डो लिटल की तरह ही सबके पास एबिलिटी हो एनिमल्स से कम्युनिकेट करने की और उनको समझने की. If people suddenly gained the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals, they had understand their problem, their behavior, which leads to more protection towards them. ठीक है, तो अगर लोगों के पास ऐसी कोई एबिलिटी हो जैसी डॉक्टर डोलिटल के पास थी, तो इससे क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा और उनका बिहेवियर समझा जाएगा, एनिमल बिहेवियर जो है वो समझा जाएगा और लीड्स टू मोर प्रोटेक्शन टूवर्ड्स, उनके लिए मोर प्रोटेक्शन जो है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो हो सकती है. लेट अस लर्न. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. कैट्स, फूड मैन, बर्ड लैंग्वेज, फ्लावर पॉट्स आर ऑल द वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अनदर वर्ड रिटन इन द सेम वे. देखो यहाँ पे कैट्स, फूड मैन लिखा है, बीच में हाइफन डला हुआ है. ठीक है, देन बर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर एक स्पेस डला हुआ है. फ्लावर पॉट्स, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है. तो जो वर्ड्स ये कंबाइन करके लिखे हैं, क्या ये एक जैसे हैं? नहीं है, एक जैसे नहीं है. कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय combining two words of different parts of speech to create a new word that has an entirely new meaning. So these are called compound words. ये सारे compound words हैं जो दो words को मिलाकर बने हैं. ठीक है, और इनको बनाने से एक नया वर्ड बनता है जिसका एक न्यू ही मीनिंग बनता है. ठीक है, अगर मैं सिर्फ कैट बोलूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ सिर्फ कैट बोल दिया तो कैट का मीनिंग अलग है. अगर मैं सिर्फ फूड बोलूँ, फूड का मीनिंग अलग है, मैन का मीनिंग अलग है. देन बर्ड का मीनिंग, लैंग्वेज का मीनिंग, फिर फ्लावर का मीनिंग, पॉट का मीनिंग, सब अलग अलग है अगर मैं अलग बोलती हूँ. बट अगर मैं इनको साथ में बोलती हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने साथ में बोलूँगी तो इनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया वर्ड जो है वो बन जाएगा. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. हाइफनेटेड, कैट्स, फूड मैन. देखो इसमें कैट्स, फूड मैन में आपको हाइफन नजर आएगा. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड हाइफनेटेड. देन ओपन कंपाउंड. ओपन कंपाउंड में क्या है, बर्ड एंड देन लैंग्वेज, एक स्पेस है बीच में, ये ओपन कंपाउंड है. क्लोज कंपाउंड वर्ड्स कैसे, जैसे फ्लावर पॉट्स, इसमें कोई गैप नहीं है बीच में. तो तीन तरह के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं. एक हाइफनेटेड, जैसे ये है हाइफनेटेड. देन ओपन कंपाउंड एंड देन दी क्लोज्ड कंपाउंड words. Okay, and when they form a new word, it has a different or new meaning. Now complete the following table correctly by choosing words from the box given below. An example has been done for you. ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, हाइफनेटेड वर्ड्स, ओपन कंपाउंड और क्लोज्ड कंपाउंड आपको यहाँ पर लिखने हैं. अब फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखो, सेलर सॉन्ग. ठीक है, तो सेलर सॉन्ग हम कहाँ लिखेंगे, सेलर सॉन्ग हम लिखेंगे यहाँ पर ओपन कंपाउंड वर्ड्स. ठीक है, टी टाइम, टी टाइम हम लिखेंगे क्लोज्ड में, क्योंकि स्पेस नहीं है, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स. चेक इन, हाइफनेटेड में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है. प्लो हॉर्स, ओपन कंपाउंड. हार्वेस्ट माइस, ओपन कंपाउंड. विंडोसिल, क्लोज कंपाउंड. वेल ब्रेड, हाइफन लगा हुआ है तो हाइफनेटेड. देखते हैं इसके आंसर्स. ठीक है, वेल ब्रेड हाइफनेटेड क्योंकि बीच में हाइफन है. ओपन कंपाउंड में सेलर सॉन्ग क्योंकि स्पेस है. प्लो हॉर्स, स्पेस, हार्वेस्ट माइस. देन क्लोज्ड कंपाउंड, टी टाइम, विंडो सेल. ठीक है, इस तरह से इसको आपने कंप्लीट करना. क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो. अब यहाँ से हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाना है. देखो फन के साथ हम फन लविंग जोड़ देंगे, लविंग जोड़ेंगे तो फन लविंग बन जाएगा, हाइफनेटेड.
ठीक है। हाई के साथ हम क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर हाई फ्लाइंग, नेवर एंडिंग, अर्ली राइजर, सॉन्ग बर्ड्स, ओवरहेड, ट्री टॉप्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड वर्ड्स हैं जो हमने जोड़े हैं। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। अब यही कंपाउंड वर्ड्स हमें इस पैराग्राफ में ऐड करने हैं। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डोलिटल, द फन लविंग डॉल्फिन डांस प्लेफुली इन हिज सेंचुरी। तो फन लविंग आ गया यहाँ पर। देन the dash chatter of monkeys echoed through the, तो यहाँ क्या आएगा, the never ending chatter of monkeys echoed through the tree tops, their ailments cured. Then high flying eagles soared gracefully, early risers their health restored, overhead among the songbirds chirped joyfully from the branches. All the creatures were happy with Dr. Dolittle's care. So in this way you have to fill this. Now let's come to the next question. Underline the name of animals that are hidden in the sentences given below. Clues are given within the brackets. An example has been done for you. यहाँ पर आपको कुछ नेम दिए हुए हैं एनिमल के, वो आपको क्या करने हैं यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, और आपको उसको ढूंढ कर, क्लू भी दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पर है डॉक्टर डोलिटल वॉज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट। हमें ढूंढना है इस सेंटेंस में से अ फार्म एनिमल। तो यहाँ पर आ गया फार्म एनिमल क्या है, गोट। ठीक है। ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स एंड इंसेक्ट। यहाँ हमें एक इंसेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो इंसेक्ट क्या है यहाँ पे, ये देखो ANT, आंसर आएगा एंट, ANT. The author sees the connection between humans and animals. Again, here a farm animal. So we have horse, HORSE, horse. The three baby dinosaurs are from Ice Age. Field animal, mice, MICE. The patients who came late did not know where to go. Ship of the desert. So here we have ship of the desert is camel. Camel. Okay. So in this way you have to. So in this way you have to complete this. And here it is ANT ant. Then horse, HORSE, horse. Mice, MICE, mice. Camel, CAMEL, camel. Read the following sentences from the text. Study the highlighted words. But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. The highlighted words spell and read the same backward too. Okay. So in this, if you can see, never, NEVER. Okay. Even, EVEN. फ्रॉम वन साइड इफ वी रीड इट नेवर इवन, तो इसकी जो स्पेलिंग हम उल्टी साइड से पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो NEVE, अगर हम इस साइड से पढ़ते हैं यहाँ से, तब भी यही स्पेलिंग आएगी NEVER, नेवर, और फिर आगे इवन, EVEN। तो नेवर इवन
इधर दोनों साइड से आप पढ़ोगे तो सेम स्पेलिंग आएगी। तो ऐसे ही वर्ड्स या फ्रेज को या सीक्वेंस को जो आगे पीछे बिल्कुल सेम रीड करते हैं हम, जिसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। Some of the common palindrome include was it a car or a cat? I saw Madam, I am Adam, and a man, a plan, a canal, Panama. ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं कुछ जो आप इधर से पढ़ो या इधर से, जैसे मैडम है MADAM, तो यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे तो MADAM। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको, आप सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो वो सेम लगेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो एंड आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ हमें पैलिंड्रोम वर्ड्स दिए हैं और सेंटेंसेस दिए हैं जो हमें फाइंड आउट करना। सबसे पहला है स्टेप ऑन नो पेट्स। इसमें क्या है देखो, इसमें फुल सेंटेंस हमारा जो है, फुल सेंटेंस जो है वो पैलिंड्रोम पूरा सेंटेंस है। ठीक है, कैसे देखो, स्टेप STEP, यहाँ से हम करें अगर पेट्स को उल्टा बोलेंगे तो STEP, ऑन ON, और यहाँ से भी अगर हम बोलेंगे ON, तो स्टेप ऑन और यहाँ से पेट्स ऑन सेम आएगा। नेक्स्ट, नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। अब देखो नमन, नमन वर्ड जो है यहाँ पर NAMAN, और यहाँ से उल्टा बोलेंगे तब भी सेम आएगा NAMAN। तो नेक्स्ट इज नमन। नितिन स्पीक्स इन मलयालम। अब नितिन वर्ड जो है यहाँ पर देखो, नितिन वर्ड NITIN, उल्टा बोलेंगे तब भी NITIN। मलयालम MALAYALAM, और उल्टा बोलेंगे तब भी सेम ही स्पेलिंग आएगी MALAYALAM। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक रेस कार वर्ड भी है सेकंड वाले में, नमन के साथ रेस कार, आपका रेस कार भी है यहाँ पर। ठीक है, RACE और CAR, उल्टा बोलेंगे जब हम तब भी यही स्पेलिंग आएगी RACE CAR, रेस कार। ठीक है, देन सेकंड थर्ड सेंटेंस में नितिन है और क्या है, मलयालम। Then fourth sentence, the engineer used a rotator to check the surface level. अब इसमें क्या है, रोटेटर। ठीक है, देखो रोटेटर वर्ड है ना यहाँ पर, ROTATOR, और पीछे से बोलेंगे जब तो भी सेम आएगा ROTATOR। The pilot replied on the radar to navigate safely. तो radar RADAR, और हम जब इधर से बोलेंगे तो भी RADAR। देन लास्ट, ईवा कैन आई सी बीज इन द केव। तो ये पूरा ही सेंटेंस है देखो, ईवा, तो यहाँ से हम उल्टा बोलेंगे ई, केव में अगर हम बोलते हैं EVA, ईवा। ठीक है, कैन CAN कैन, यहाँ पे आएगा CAN कैन, आई CSEEC सी, बीज, सेम फुल सेंटेंस आएगा, होल सेंटेंस। ठीक है, तो होल सेंटेंस आएगा ये। Underline the verbs, identify the tense form in the following sentences from the text. The verbs in first and third are in present continuous. The verbs in second and fourth are in simple continuous. Now you have to underline verbs. Verbs क्या होती हैं? Verbs are the action words जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, they are called the action words. Identify the tense, हमें tense जो है इसमें identify करना है। देखो, he is asking you a question, is asking, पहले तो हमें verb ढूंढना है, verb क्या है इसमें, asking। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है, आस्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आस्किंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, और पूरा हम अगर टेंस ढूंढेंगे, इज आस्किंग, जहां पर ING इज MR लग जाता है वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, इज आस्किंग। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, तो यहाँ पर आर इज अ हेल्पिंग वर्ब।
इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और कोई वर्ब नहीं है, सेकंड सेंटेंस में सिर्फ आर है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और ये वाला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, ये दिस इज सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वाई आई, तो इसमें वर्ब ढूंढेंगे, पहले वर्ब है गोइंग, ठीक है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा है एम, तो एम गोइंग हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे आई एन जी लगा है। इसका रूल यही है, इज एम आर प्लस आई एन जी इन द वर्ब। ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्या वर्ड दिया हुआ है? थिंक दिया हुआ है, और थिंक जो है वो क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है ये। ओके, रीड द सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस from the text. That man has got sense. Can't you see that it has stopped raining? In the first sentence, the verb has got denote an action that is relevant at the time of speaking. In the second sentence, the verbs has stopped denote an action that is recently completed. तो फर्स्ट सेंटेंस में मैन हैज़ गॉट सेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है? हैज़ गॉट लगा हुआ है, तो एक्शन जो है ना वो अभी एकदम बोलने मतलब स्पीकिंग के टाइम पे ही एक्शन हो रहा है। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट, जस्ट अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, तो अभी अभी जो है वो बारिश रुकी है। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम एक एक्शन जो भी कंप्लीट हुआ है उसके लिए, एन एक्शन that started in the past and is relevant even at the moment of speaking। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गया था और अभी भी बोलते वक्त भी वो एक्शन चल रहा है। An action in the past where the focus is on action and not on the time of occurrence but relevant at the time of speaking। the speaking के टाइम पे वो एक्शन जो है वो भी हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। What is the structure or rule of present perfect tense? Has और have plus V3 means verb का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे, किसके साथ? has और have के साथ। ठीक है, एंड हैज़ और हैव ये कब लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हैज़ तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट, जैसे ही किसके साथ लगेगा? ही शी इट के साथ। हैज़ लगेगा ही शी और इट के साथ, और हैव किसके साथ लगेगा? आई यू वी दे, इनके साथ क्या लगता है? हैव। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो आप यूज़ कर पाओगे कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। ठीक है, हैज़ कहाँ लगेगा? ही शी इट, और हैव लगेगा आई यू वी दे। ठीक है, तो और साथ में लगेगा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट गिवन विद इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको एक वर्ब दिया है और आपको इसको हैज़ और हैव के साथ ऐड करके थर्ड फॉर्म ऐड करके आपको इसको यहाँ पर फिल करना। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डोलिटल लर्न हैज लर्नड, लर्नड की जगह हम लर्नट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लर्नट मतलब LEARNT, लर्नट। लर्नट भी लिख सकते हैं, वो भी थर्ड फॉर्म है, लर्नड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है,
टू कम्युनिकेट विद ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ही, अब ही के साथ क्या लगेगा मैंने आपको बताया था अभी, ही हैज़, ठीक है, ही हैज़ ट्रीटेड, थर्ड फॉर्म लग गया यहाँ पे, काउंटलेस फार्म एनिमल्स and pets with care. Countless farm animals and pet with care. The parrot Polynesia teach him bird language. तो Polynesia सिंगल है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, हैज taught, थर्ड फॉर्म है टीच का, taught him bird language and he write books about his adventure. ही के साथ लगेगा has, तो he has written books about his adventures. many people, many people बहुत सारे, ठीक है, तो क्या लगेगा have brought, bring का हो जाएगा brought their sick animals to his door. over the years Dolittle, अब Dolittle, डॉक्टर Dolittle सिंगुलर है तो has become renowned worldwide for his unique abilities. तो इसमें आपने यही याद रखना है, क्या रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हैज और हैव कहाँ यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया, हैज यूज होगा ही शी इट के साथ, और हैव जो है भी यूज होगा आई यू वी दे इसके साथ, ठीक है। So this is the last question of the video. I hope you have understood all the answers. Please do like my video and subscribe my channel. So I'll see you soon with my next video. Up till then, take good care of yourself. See you all. Goodbye.